Hello, my dear students. I Rahul Mishra, and today we are going to discuss next numerical problem, which is which of the following is heaviest. First one is 40 gram of Fe. Second one is 1.2 gram of nitrogen atom. Third one is 1 into 10 to the power 23 carbon atom. And fourth one is 1.12 liter ऑक्सीजन एटम ऑक्सीजन एट NTP। तो आपको बताना है इनमें से दिए गए जो तत्व हैं या परमाणु हैं या हम कह सकते हैं एलिमेंट या एटम, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हैवीएस्ट। इट मीन्स इनमें से कौन सा भारी है, सबसे ज्यादा भारी कौन सा है। नाउ लेट्स वी डिस्कस द सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। सो फर्स्ट वन इज मास ऑफ 40 gram Fe is 40 gram. It means in all these question we have to calculate mass. If we will find mass, then we can say which one will be heaviest. So first one is mass of 40 gram of Fe is, we all know that it will be 40 gram because it is given already. Now second one is what is the mass of 1.2 gram of nitrogen atom. 1.2 gram of nitrogen atom. So listen here, we all know that from the concept of mole, we know that mass of 1 gram atom, 1 gram atom is also called as 1 mole. Learn it. 1 mole equal to 1 gram atom also. 1 mole equal to 1 gram atom also. So always remember 1 mole equal to 1 gram atom. So listen here. We all know that mass of 1 gram atom, it is equal to gram atomic mass. We all know that 1 mole, mass of 1 mole equal to gram atomic mass, as we have earlier studied in the previous lecture. Gram atomic mass will be equal to mass of 1 mole. So mass of 1 gram atom of nitrogen will be gram atomic mass of nitrogen. But we have to find, हमको क्या चाहिए, we have to find 1.2 gram atom of nitrogen contain how much mass. So mass of 1.2 gram of nitrogen, so we multiplied it by 14 gram into 1.2 and we will get 16.8. So listen, second part will get solved. Now third part is what is the mass of 1 into 10 to the power 23 carbon atom. तो अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे 1 into 10 to the power 23 कार्बन एटम का मास. सो लेट्स वी डिस्कस. So we all know that we have to find mass of 1 into 10 to the power 23 कार्बन एटम. हमको क्या चाहिए, मास ऑफ 1 into 10 to the power 23 कार्बन एटम का. तो हमको मास चाहिए, तो मास को हम लोग राइट साइड में रखेंगे. कहाँ से चाहिए, कार्बन एटम से चाहिए. तो कुछ ऐसी रिलेशन बनाएंगे एटम या पार्टिकल की मास के साथ. सो वी ऑल नो दैट इट इज़ वेरी सिंपल. वी हैव अर्लियर स्टडीड फ्रॉम मोल कॉन्सेप्ट. सो लिसन. सो कंडीशन वी विल यूज हेयर, इट इज़
6.023 into 10 to the power 23 carbon atom equal to gram atomic mass of carbon. Can we say it? Yes. It means एक मोल सब्सटेंस का जो मास होता है वो उसके ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होता है, ये हम कह सकते हैं, पीछे हम पढ़ चुके हैं। इट मीन्स वी कैन से 6.023 into 10 to the power 23 कार्बन एटम विल बी 12 ग्राम। सो मास ऑफ हमको कितने का निकालना है? 1 into 10 to the power 23 का। इट मीन्स 6.023 को हमको कहाँ भेजना पड़ेगा? नीचे। सो इट विल बिकम mass of 1 into 10 to the power 23 carbon atom, it will be equal to 12 upon 6.023 and it will be equal to 1.99। तो हमारे 3 मास निकल आए हैं, पहला 40, दूसरा 16.8, अब हमारा चौथा निकलेगा। एंड फोर्थ पार्ट इज लिसन, मास ऑफ 1.12 लीटर O2 एट NTP। इट मीन्स हमको अब रिलेशन किस में चाहिए? वॉल्यूम और मास में। वॉल्यूम को चेंज कर दें हम किस में? मास में। तो एज वी हैव अर्लियर स्टडीड इन मोल कॉन्सेप्ट, सो वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट STP इज इक्वल टू 1 मोल एंड इट इज इक्वल टू ग्राम मॉलिकुलर मास। सो वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट STP इट इज इक्वल टू 22.4 लीटर and it is equal to gram molecular mass of O2 is 16 into 2, so it will be 32, but we have to find for 1.12 liter of O2। हमको चाहिए कितने के लिए? 1.12 लीटर ऑफ O2 के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले एक के लिए निकालेंगे तो 22.4 से डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद हम 1.12 के लिए निकालेंगे तो 1.12 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा मास आ जाएगा, वी विल गेट 1.6 ग्राम। इट मीन्स वी कैन से देयर आर 4 masses। सो लिसन, वी कैन सी हेयर, फर्स्ट वन इज 40 ग्राम, सेकेंड वन इज 16.8 ग्राम, थर्ड वन इज 1.99 ग्राम एंड फोर्थ वन इज 1.6 ग्राम। सो विच one is heaviest? So we can see the heaviest mass is 40 grams. So this will be your answer. Now next question is, calculate the number of moles of water in 488 gram BaCl2.2H2O। It means हमको ये बताना है कि वाटर के कितने मोल्स प्रेजेंट हैं 488 ग्राम बेरियम क्लोराइड .2H2O में। इट मीन्स हम लोग कौन सी कंडीशन यूज करेंगे? वी विल यूज द कंडीशन बिटवीन नंबर ऑफ मोल्स एंड ग्राम मॉलिकुलर मास। तो हम नंबर ऑफ मोल्स को राइट साइड में रखेंगे और ग्राम मॉलिकुलर मास को लेफ्ट साइड में। सो लिसन, we all know that we can say in this case we can say gram molecular mass of BaCl2.2H2O equal to 2 mole of water। हमको दिख रहा है कि एक मॉलिक्यूल में वाटर के कितने मोल प्रेजेंट हैं? 2 मोल। BaCl2.2H2O मॉलिक्यूल के एक मॉलिक्यूल में टोटल कितने वाटर के मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं? 2 mole। We can see here this is 2 mole of water। It means its gram molecular mass also contain 2 mole of water। It means इतने ग्राम मॉलिकुलर मास में कितने वाटर के मॉलिक्यूल हैं? 2। कितने वाटर के मॉलिक्यूल हैं? 2 वाटर के मॉलिक्यूल हैं। Now we can say हम कह सकते हैं ग्राम मॉलिकुलर मास BaCl2.2H2O का होता है 244 ग्राम। सो वी कैन से 244 ग्राम ऑफ BaCl2.2H2O कंटेन हाउ मेनी मोल्स ऑफ वाटर? 2 मोल्स ऑफ वाटर। क्योंकि ग्राम मॉलिकुलर मास जो होता है BaCl2.2H2O का वो होता है 244 ग्राम।
तो 244 ग्राम BaCl2.2H2O में कितने वाटर के मॉलिक्यूल हैं, कितने मोल वाटर हैं, 2 मोल वाटर हैं। सो लिसन, 1 ग्राम ऑफ BaCl2.2H2O कंटेन 2/244। 244 को कहाँ ले आएंगे, नीचे ले आएंगे। सो 488 ग्राम हमको निकालना कितने के लिए है, 488 ग्राम BaCl2.2H2O में कितने मोल वाटर है। तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 488 से डिवाइड कर देंगे एंड योर आंसर विल बी 4 मोल। आपका आंसर होगा 4 मोल। नाउ लास्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ CO2 molecule and number of atoms of carbon and oxygen in 88 ग्राम of CO2। इट मीन्स 88 ग्राम CO2 में हमको बताना क्या क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। सबसे पहले हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल लें, बहुत सिंपल है, इट इज़ वेरी सिंपल। सो N इज इक्वल टू W/M, गिवन मास इज 88, W is 88, molecular mass of CO2 is 44. So how many number of moles are there? 2. नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर हो जाएगा, 2 के। अगला क्वेश्चन है नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल। इसका मतलब अब हमें चेंज करना है ग्राम मॉलिक्यूलर मास को मॉलिक्यूल में। सिंस वी ऑल नो दैट ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 will be equal to how many molecule? It is equal to 1 mole molecule, and 1 mole contain how many molecule? 6.023 into 10 to the power 23। हमको पता है कि ग्राम मॉलिक्यूलर मास CO2 का किसके बराबर होता है, 1 मोल के, और 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं, 6.023 into 10 to the power 23। Now we can say what is the gram molecular mass of CO2? It is 44 gram of CO2 and it contain how many molecule? 6.023 into 10 to the power 23 CO2 molecule। So we calculate it for 1 gram। 1 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल होंगे, इतने मॉलिक्यूल हो जाएंगे। So listen, now you can solve it and you will get your answer। Now listen, next question is calculate the number of atoms of carbon and oxygen। अब हमें क्या करना है, 88 ग्राम CO2 में कितने कार्बन एटम हैं और कितने ऑक्सीजन एटम हैं, ये बताना है। तो हमें पता है, लिसन हियर, वी ऑल नो दैट 1 मोल और वी कैन से 44 ग्राम CO2। 1 मोल CO2 में 1 कार्बन एटम होता है, 1 मोल कार्बन एटम होता है और 2 मोल ऑक्सीजन एटम होता है। So we can say 44 gram of CO2 because 44 is gram molecular mass of CO2. 44 gram of CO2 contain 1 mole carbon and 2 mole oxygen. So listen here, we can say 1 mole or 44 gram CO2 contain 1 mole carbon and 2 mole oxygen। So 44 gram 1 mole equal to, we can say 1 mole CO2 equal to 44 gram of CO2 and it contain how many mole of carbon? 1 mole carbon atom। हमको क्योंकि रिलेशन हमने बताया था आपको कौन सी यूज करनी है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास और नंबर ऑफ एटम के बीच में। तो 1 मोल कार्बन एटम में कितने एटम होते हैं, 6.023 into 10 to the power 23। बिकॉज 44 ग्राम में कितने हैं, 1 मोल कार्बन एटम है और 1 मोल का मतलब 6.023 into 10 to the power 23। हम क्या करेंगे, हमको निकालना कितने में है, 88 ग्राम में। तो हमको 44 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। सो इट इज़ मल्टीप्लाइड बाई 2। तो अगर लेफ्ट साइड में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो राइट में भी करना पड़ेगा। सो वी मल्टीप्लाइड बाई 2 हेयर आल्सो एंड वी विल गेट 2 into 6.023 into 10 to the power 23 and we will get answer and it is equal to
046 × 10⁻23 कार्बन एटम। जैसे कि हमने 44 ग्राम CO2 में 1 मोल कार्बन एटम, इन दोनों कंडीशन को यूज किया, या 44 ग्राम CO2 में कितने मोल कार्बन होते हैं, कार्बन एटम होते हैं, 1 मोल, जैसे कि अभी हमने देखा था, और कितने मोल ऑक्सीजन एटम होते हैं, 2 मोल। तो 44 ग्राम CO2 को इक्वल कर देंगे 2 मोल ऑक्सीजन एटम के। तो हमको क्या पता चल जाएगा, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने हैं, किसमें, 44 ग्राम CO2 में। और अगर 44 ग्राम के लिए पता चल जाएगा तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो हमारा क्वेश्चन है कितने में, 88 ग्राम में, तो वो भी हमें क्या हो जाएगा, पता हो जाएगा। सो दिस वाज योर क्वेश्चन, एंड लिसन, this is your homework. You have to solve the number of atoms, number of oxygen atom present in 88 gram of CO2. This is your homework.